Hello students, today I am going to complete our remaining chapter, The Summit Within, in which Major HPS Ahluwalia has told his experiences when he conquered the Everest. He was the member of the first successful expedition to Mount Everest in 1965, as I told you earlier. And he has narrated his experiences of climbing the summit of Everest. As the author stood on the summit, many emotions surged through him, and of all the emotions, the dominant one was humility. Uh, he thought that climbing the summit of Everest provides a deep sense of joy which lasts a lifetime and changes the climber completely. According to him, there is another summit, the summit of mind, that is more difficult to climb. And after getting down from the summit, the author questioned himself as to why people climb mountains, and the mountains presents great difficulties before them. The man takes delight in overcoming these obstacles. He want to tell us here, and there are three qualities that played a major role in climbing that peak. That is his physical endurance, his persistence, and willpower. And from childhood, the author has been attracted by the mountains. When he was questioned about it, that why he choose this thing to uh, climb the mountains, he answered that from his early childhood he was attracted by the mountains, and he tells that mountains are nature at its best. And he tells that mountains are means of communion with God. He tells that adventure is risky but pleasurable. And now he tells about his brutal struggle with the rocks and ice. Uh, this struggle gives the sense of battle fought and won, and a feeling of victory and of happiness. It provides physical, emotional, and spiritual experiences. And the climbers uh, who went with him on this expedition left some relics of Guru Nanak and their respective gods, and paid their reverence to them. So I'm going to start it from where we left this chapter. Looking round from the summit, you tell yourself that it was worthwhile. Worthwhile means it was very benefit giving, beneficial for them. कि जब हम ऊपर चोटी पर जा कर के देखते हैं, जब हमें क्या महसूस होता है कि ये जो चढ़ाई थी हमारे लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल रही, कितनी ज़्यादा लाभकारी है. Other silvery peaks appear rough through the clouds. Now the author says that when he sees round, he sees that there are silvery peaks, other mountains, other peaks which he can see from from Everest. वो भी जो है बहुत ही सिल्वरी हैं. सिल्वरी क्यों बता रहा है उनको? हेयर इज़ एन एडजेक्टिव सिल्वरी. ये एडजेक्टिव इन पिक्स के लिए क्यों रखा गया है? क्योंकि जो है पिक्स जो है कम्प्लीटली किससे कवर्ड हैं? स्नो कवर्ड हैं, और स्नो की वजह से जो वो कैसी लग रही हैं? सिल्वर कलर की नज़र आ रही हैं. और कहाँ से? थ्रू द क्लाउड्स, बादलों के बीच से. इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन दैम. अगर आप जो है लकी हैं, उस टाइम पे जो है सूर्य की रोशनी उनके ऊपर गिर रही होती है, तो आपको जो है ये पीक्स कैसी नज़र आती हैं? द सराउंडिंग पीक्स लुक लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट. और ये जो सराउंडिंग पीक्स हैं, ये जो चारों ओर पीक्स नज़र आ रही हैं, कैसी लग रही हैं? ये अगर इनके ऊपर सूर्य की रोशनी गिरती है तो जो बर्फ़ है वो चमकना शुरू हो जाती है, और वो एक ज्वेलरी की तरह, एक नेकलेस की तरह नज़र आती हैं, जो कि उस चोटी के चारों ओर लगा हुआ है. बिलो यू सी वास्ट वैलीज स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस. और जब आप नीचे की तरफ देखते हो चोटी से, तो आपको जो है बहुत बड़ी गहरी जो है वैलीज, घाटियाँ नज़र आएंगी जो काफ़ी दूर हैं. इट इज़ एन इनोबलिंग. इनोबलिंग मीन्स
हमें ऊपर उठाने वाली एनरिचिंग एक्सपीरियंस, और बहुत ही ज़्यादा एनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है, समृद्ध एक्सपीरियंस है टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन, जब हम एक माउंटेन से जो है नीचे की तरफ देखते हैं. सो इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ हिज लाइफ एंड इट मेक्स हिम very rich when he sees this beauty of nature from the top. You bow down and make our obeisance to whichever god you worship. और फिर आप अपने आप को झुका लेते हैं. bow down means झुक जाते हैं. किसके सम्मान में झुक जाते हैं? अपनी जो है गॉड जिसकी आप वर्शिप करते हो, जिस भगवान को आप पूजते हो, उसके सम्मान में जो है आप झुक जाते हो, उनको प्रणाम करते हो. I left on Everest a picture of Guru Nanak. Now HPS Ahluwalia says that when he reached on Everest, he left a picture of Guru Nanak there. And Rawat, who was his co-traveler, who was his co-climber, he left a picture of Goddess Durga because he was from Bengal, and in Bengal Goddess Durga is worshipped. So he left the picture of Goddess Durga. Phu Dorji left a relic of Buddha, and Phu Dorji, who was a Buddhist, he left a relic. Relic means चिन्ह, निशान. बुद्ध का एक निशान छोड़ दिया, बुद्ध भगवान. Edmund Hillary had buried a cross under a cairn in the snow. Cairn means a heap of rocks and stones. चट्टानों और स्टोन्स का जो है एक ढेर, जिसके नीचे जो है उसने किसको दबा दिया? क्रॉस. क्रॉस किसका साइन होता है? इट इज़ अ साइन फॉर द क्रिश्चियंस, हॉली साइन फॉर द गॉड क्राइस्ट. एंड दीज आर नॉट सिम्बल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस. और ये जो सिम्बल्स उन्होंने इस चोटी पर छोड़े हैं, अपने अपने देवी देवताओं के जो सिम्बल्स, जो पिक्चर्स उन्होंने जो है इस चोटी पर छोड़े हैं, वो इसको नहीं दिखाते कि उन्होंने इस चोटी को जीत लिया है, कॉन्क्वेस्ट कर लिया, उसके ऊपर विनोवर कर लिया है, बल्कि जो है उनके सम्मान के लिए छोड़े हैं कि जो है अपने देवी देवताओं, अपने पूज्य जो भगवान हैं, उनके सम्मान में जो है उन्होंने उनकी पिक्चर्स को वहाँ पर छोड़ा. द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू द समिट चेंजेस यू कम्प्लीटली. नाउ HPS Ahluwalia says that the experience of having climbed to the summit, when you experience this thing, when you go up to a summit, on the top of the summit, it changes you completely. जब आप जो है किसी चोटी पर जाते हैं तो ये आपको जो है पूरी तरह से बदल कर रख देता है. There is another summit, it is within yourself. Now up to now the author has talked about the summit Mount Everest, and now he is going to talk about the another one summit which is within us. अब जो है दूसरी चोटी की बात करने जा रहा है, और वो चोटी का है हमारे अंदर है. इट इज़ विद इन योर सेल्फ, ये तुम्हारे अंदर है. इट इज़ इन योर ऑन माइंड, अपने दिमाग में है. ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक्स. नाउ द ऑथर सेज दैट ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ अ माउंटेन इनसाइड हिज और हर माइंड. कि हर कोई व्यक्ति जो है उसके अंदर एक अलग चोटी होती है, दिमाग की चोटी, जो कि हर किसी के अंदर होती है. ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ. और हर व्यक्ति को जो है अपनी इस चोटी के ऊपर ज़रूर चढ़ना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो अपनी पूरी नॉलेज, अपने बारे में हर चीज़ को जान सकें. इट्स फियरफुल एंड अनस्केलेबल. इस पर चढ़ना जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर, और इसको जो है चढ़ना मुश्किल है, क्योंकि जो है इंसान जो है अपने मन को कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाता है. अपनी जो फीलिंग है, प्राउड फीलिंग है, अहंकार की जो ईगो की फीलिंग है, उसको कभी भी नहीं दबा पाता है, और वो जो है अपने आप को दूसरों से कभी भी नीचा नहीं देखता है. सो ये जो फीलिंग्स हैं हमें उस चोटी पर चढ़ने से, ये जो ऑब्स्टेकल्स हैं इस चोटी के ऊपर जाने में, ये हमेशा जो है उस चोटी पर जाने में हमें रोकती हैं. और ऑथर कहता है कि हम जो माउंट एवरेस्ट जैसी समिट्स हैं, चोटी हैं, उनको बड़ी आसानी से जो है कॉन्क्वेस्ट कर सकते हैं. बट जो ये चोटी हमारे माइंड की है, इसको हमें कॉन्क्वेस्ट करना जो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल टास्क है. हम कह सकते हैं नामुमकिन टास्क है, क्योंकि हम जो है अपने आप को, अपने मन को, अपनी सेंसेस को जो है कंट्रोल में नहीं
कर पाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको जो है कोई चीज़ पसंद आती है या आपकी जो है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आप उसके लिए अपने मन में जो है बहुत सारी गलत बातें जो उसके लिए बना लेते हैं, या फिर उससे रिवेंज लेने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आपकी जो प्राउड वाली फीलिंग है, जो आपकी ईगो वाली फीलिंग है, वो आपको जो है कंट्रोल नहीं करने देती इसको। और इसी वजह से जो है यहाँ पर ऑथर ने बोला है कि जब तक और हम अपने आप पर घमंड महसूस करना शुरू कर देते हैं कि हमें ऐसा कैसे बोल दिया। इवन कई बार जो है बच्चों को टीचर्स की बातें भी जो है अच्छी नहीं लगती, और वो उनसे भी जो है जो अपने प्राउड को बचाने के लिए, अपने ईगो को बचाने के लिए उनसे भी जो है आर्गुमेंट करते हैं। सो यही चीज़ है हमारे अंदर, ये जो मन की चोटी है, इसको जो है पार करना, इसको कॉन्क्वर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं जो कि इसके रास्ते में ऑब्स्टेकल्स के रूप में आती हैं। और वो कमियां क्या हैं हमारे अंदर? हमारा ईगो, हमारा प्राउड, हमारी सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, हम किसी से जो है अपने आप को इन्फीरियर नहीं मानते हैं, और इसी वजह से जो है हम अपने मन को कंट्रोल करने में जो है कामयाब नहीं हो पाते हैं। सो इट कांट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, और ये जो है किसी के द्वारा भी चढ़ी नहीं जा सकती है। यू योर सेल्फ हैव टू डू इट, तुम्हें अपने आप जो है इसको कॉन्क्वर करना होता है। अब यहाँ पर जो है ऑथर ने क्या बताया है कि हम इस चोटी को भी चढ़ लेते हैं, लेकिन इस चोटी को चढ़ना जो है हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। और जब आप माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो आपको महसूस होता है, आपके अंदर जो है मेंटली बहुत सारे चेंजेज आते हैं, और आप अपनी जो स्मॉलनेस है इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में, क्योंकि आप जो है एक इतनी बड़ी विशालकाय चोटी पर अपने आप को बिल्कुल छोटा सा देखते हैं, और जब नीचे की तरफ देखते हैं तो इतने वाइड एरिया में आपको क्या नज़र आता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी बड़ी घाटियाँ हैं, लेकिन हम जो है इनमें बिल्कुल छोटे से जीव हैं, और जबकि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं। तो वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि इस जो एक्सपेडिशन था, इसकी जो रास्ते की रुकावटें थी, ऑब्स्टेकल्स थी, उन सब ने जो है मुझे मेंटली बदलने पर मजबूर कर दिया। और दूसरा क्या है कि मेरे अंदर ये फीलिंग आ गई कि जो है इंसान जो है अपने आप में बहुत छोटा होता है, लेकिन हम अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा समझने लग जाते हैं, और इसी वजह से कई बार हम सक्सेस को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। You yourself have to do it. The physical act of climbing to the summit of the mountain outside is akin to act of climbing the mountain within. और यहाँ पर जो है ऑथर ने क्या बताया है, द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन। हम फिज़िकली जब चढ़ना शुरू करते हैं, क्योंकि फिज़िकली ही हम जो अपने आप को चढ़ा करके प्रूव कर पाते हैं कि हमने क्लाइंबिंग की है। हम शारीरिक तौर पर जो है अपने कार्य करना शुरू कर देते हैं, जो रास्ते में ऑब्स्टेकल्स आती हैं उनसे लड़ते हैं, और जो है इस समिट को, इस माउंटेन को कॉन्क्वर करने के लिए क्लाइंबिंग करते हैं। आउटसाइड इज़ अकिन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन। लेकिन हम अंदर से जो है इसके साथ साथ एक और क्लाइंबिंग कर रहे होते हैं, एक और चढ़ाई कर रहे होते हैं। वो चढ़ाई क्या है कि हम अपने अंदर की एक माउंटेन है उसके ऊपर भी जो है साथ साथ, क्योंकि हमारे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें फेस करने को मिलते हैं जिससे हमें हमारा जो घमंड है, हमारा जो अपने आप में सुपीरियरिटी वाली फीलिंग है, वो एक बैलेंस में आ जाती है, और हमें अपनी रियलिटी हमारे सामने आ जाती है। इसी वजह से जो है यहाँ पर ऑथर क्या कहता है कि उस चढ़ाई के साथ साथ, उस क्लाइंबिंग के साथ साथ हम एक और एक्ट करते हैं। वो क्या है? एक और क्लाइंबिंग करते हैं जो कि माउंटेन हमारे अंदर है। द इफ़ेक्ट्स ऑफ बोथ द क्लाइंब्स आर द सेम। और ये जो इफ़ेक्ट है दोनों क्लाइंब्स का, जो हम चढ़ाई करते हैं, दोनों चोटी पर जब हम जाते हैं, ये बिल्कुल सेम है। Whether the mountain you climb is physical and emotional and spiritual, the climb will certainly change you. अगर ये जो चढ़ाई है, चाहे ये जो है फिजिकल है, इमोशनल है या स्पिरिचुअल है, आपको इमोशनली भी जो है बिल्कुल इमोशनल बना देती है, आपको स्पिरिचुअली जो है हिला करके रख देती है, आपकी अंतरात्मा तक को जो है ये एहसास दिलाती है, फील करवाती है कि आपने जो है क्या अचीव किया है और क्या नहीं।
ये हमारे अंदर हमें बिल्कुल जो है बदल के रख देती है। इट टीचेज यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और ये आपको आपके बारे में और इस संसार के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने को देती है। I venture to think that my experience as an Everester has provided me with the inspiration to face life's ordeals resolutely. I venture मैंने साहस किया, कोशिश की, to think सोचने का, that my experience as an Everester कि एक एवरेस्टर के तौर पर मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उससे मुझे क्या प्राप्त हुआ है, that provided me with the inspiration, एक प्रेरणा मुझे इससे मिली है कि हम जो है अपनी लाइफ में आने वाली जो सामान्य सी मुसीबतें हैं, ऑर्डियल्स हैं, उनको कितनी दृढ़ संकल्प के साथ, रेजोल्यूटली मीन्स विद डिटर्मिनेशन एंड फर्मनेस, हम जो है उनको कैसे फेस करते हैं। क्लाइंबिंग द माउंटेन्स वॉज अ वर्थ वाइल एक्सपीरियंस, और जो माउंटेन्स क्लाइंबिंग टास्क है ये एक बहुत ही ज़्यादा वर्थ वाइल एक्सपीरियंस है, बहुत ही लाभकारी, बहुत ही बेनिफिशियल एक्सपीरियंस है। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और हमारी जो इंटरनल समिट है, एक हमारे अंदर की जो चोटी है, द समिट विच इज़ विद इन अस हैज़ एन इक्वल इम्पोर्टेंस, ये भी जो है एक इक्वल इम्पोर्टेंस रखती है। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और ऑथर यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि शायद जो हमारे अंदर की चोटी है वो बाहर की चोटी से कहीं ज़्यादा ऊंची होती है, जिसको जो है चढ़ना, जिसके ऊपर जो है जिसको कॉन्कर करना जो है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड इन द लास्ट पॉइंट्स व्हाट वी केम टू नो दैट थ्रू आउट दिस चैप्टर द ऑथर वांट्स टू टेल अस अबाउट द two summits. The summit which he conquered was Everest, and the second summit is within us, which is the summit of our mind, and it is very difficult to achieve this summit. बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है इस समिट को अचीव करना, क्योंकि हम जो है हमारे अंदर जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो हमारी कठिनाइयाँ हैं, चाहे वो मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारी कठिनाइयाँ, जैसे हमारी प्राउड वाली फीलिंग है, या हमारा जो घमंड है, हमारी जो सुपीरियरिटी है, वो हमें इस रास्ते पर चढ़ने के लिए मुश्किलें पैदा करती है। लेकिन यहाँ पर जो है ऑथर क्या बताते हैं, जब हम एवरेस्ट को चढ़ने का काम करते हैं, हम उसके रास्ते में आने वाली मुसीबतों का सामना करते हैं, तो हमारे अंदर एक फीलिंग और क्या आती है, हम हमारी जो रियलिटी है उसको फेस करना सीख जाते हैं कि हम वास्तव में हम कैसे हैं। जो अपने ऊपर हम इतना ज़्यादा घमंड करते हैं, प्राउड फील करते हैं, हमारी रियलिटी जो है हमारे सामने आ जाती है, और इसकी वजह से जो है हम अपनी एक अंदर वाली चोटी को भी चढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर भी पार पाने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर ऑथर ने यही जो है बताने के लिए, समझाने के लिए ये पूरा एक्सपीरियंस अपना हमारे साथ शेयर किया। So from this chapter we came to know about the HPS Ahluwalia, who was the first member of the first expedition to Everest. Now we come to our comprehension check. Standing on Everest, the writer was overjoyed, very sad and jubilant, and said, there are options, so we have to choose one option from these. स्टैंडिंग ऑन एवरेस्ट, जब एवरेस्ट पर जब ऑथर थे तो उनके अंदर कैसी फीलिंग आती है, ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है, जुबिलेंट एंड सैड, वो जो है खुश भी थे और नाराज़ भी थे। सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ विक्ट्री ओवर हर्डल्स, ह्यूमिलिटी एंड अ सेंस ऑफ स्मॉलनेस, ग्रेटनेस एंड सेल्फ इम्पोर्टेंस, जॉय ऑफ डिस्कवरी। द इमोशन दैट ग्रिप्ड हिम वॉज वन ऑफ, एक ऐसी इमोशन जिसने उसको ग्रिप कर लिया था, वो कौन सी थी, विक्ट्री ऑफ हर्डल्स, ओवर हर्डल्स, नो, ह्यूमिलिटी एंड सेंस ऑफ स्मॉलनेस, दिस वन। द समिट ऑफ द माइंड रेफर्स टू ग्रेट इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स,
the process of maturing mentally and spiritually, overcoming personal ambition for common welfare, living the world of thought and imagination, the triumph of mind over worldly pleasures for a noble cause, a fuller knowledge of oneself. अब आप जो है इनमें से नॉन रेलिवेंट आइटम्स को मार्क करेंगे, तो वो दिस इज योर टास्क टू डू. So these are the questions from the text that I will send you a PDF for these. And students, you have to learn all the questions exercise side by side, because I will take your test whenever it will be possible. So don't try to forget it. Just not to do just your writing work, you have to do your learning work also side by side. So keep it up. And if you have any doubts regarding this chapter, regarding any chapter, you can comment in your comment section. Thank you.